Hello, everyone. Good morning. I'm Sayukta from Prostate Wellbeing Team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss a very important topic benign prostatic hyperplasia, BPH. Now, BPH is the non cancerous enlargement of the prostate, usually begins in 50s in men, and in many men, it may cause obstruction to urine flow. Many times they have to get up and go to the toilet at night, and is one of the most troublesome aspect of this condition, as it makes them tired during the day. Having to urinate frequently during the day, sometimes with a sense of urgency, can also be tiring for patients and can make traveling or attending events such as going to the theater, cinema, etc., rather difficult. A doctor, such as a neurologist, can treat this condition and help the patient to get relief. So, to throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of BPH, today we have with us renowned urologist Dr. Ankush Puri. He is MBBS, MS, DRNB Urology, Doctors, MS General Surgical Gold Medalist from MCU Gujarat, DRNB Urology from MPUH Nadiyal. He has a rich experience and hands on expertise in stone management as well as in treating urological problems. He is currently practicing at Mark Hospital, Bilaspur. Previously, he was with Apollo, Bilaspur. Dr. Rankush has rich experience in the field of urology and carries out the diagnosis and treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. A very warm welcome to you, Dr. Ankush Puri. बहुत बहुत स्वागत है आपका. So doctor, today we are going to talk about BPH, जिसे बहुत commonly हम prostate का बढ़ना, enlargement of prostate कहते हैं. And to understand or to talk further about it, first of all हम बात करना चाहेंगे कि prostate क्या है, वो कहाँ ये gland होता है. प्रोस्टेट एक तरह का एक्सरी सेक्सुअल ऑर्गन है जो कि सिर्फ मेल्स में पाया जाता है. एंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये ब्लैडर के नीचे होता है और ये रेक्टम के सामने होता है. और जो पेशाब की नली है जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं वो उसके आजू बाजू होता है. तो जो पेशाब की जो नली है वो प्रोस्टेट के थ्रू होके जाती है. ओके. और और प्रोस्टेट अब बात ग्लैंड जी डॉक्टर, और अब बात बीपीएच की कि एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैसे होता है. तो प्रोस्टेट का जो एनलार्जमेंट है वो एज के साथ में होना तय है. एंड अदर देन दैट इज विद नॉर्मल टेस्टिकुलर फंक्शन. जो टेस्टिस होती है उसमें एक द्रव्य बनता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं जो कि प्रोस्टेट के ग्लैंड का ग्रोथ डिसाइड करता है. There are many other factors जो कि proven नहीं है कि high diet is rich in hormones or non-veg diet, diabetes, other risk factors are there, but they are not proven. जो proven factor है वो है age. Those who are more than 50 years of age and those who have normal testicular functions, उसमें prostate का growth होता है with age. So normally it is seen in fifth decade of life. When you are above 50, so you start facing symptom of urinary disturbance in which you have sometimes slow flow or you have increased frequency in the night, which we call nocturia. Then we have urgency, then you have to go to the toilet so that you are not able to pass completely or poor skin. So BPH itself, it is saying that it is benign prostatic hyperplasia. It is not a cancerous enlargement, it is benign enlargement, which is because of the hormonal changes and with the age. And when there is a growth in the prostate gland, so as I told, it is surrounding the urethra. तो जो आपकी जो मूत्र नली है वो दब जाती है प्रोस्टेट की ग्रोथ से. एंड देन यू स्टार्ट फेसिंग द सिम्टम. सो दैट इज व्हाट हाउ वी डायग्नोस बीपीएच with the aging picture, with the flow being poor, and on sonography we diagnose that it is enlarged. And clinically also when we do per rectal examination, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है जिस कारण से पेशाब में तकलीफें आ रही हैं. बिल्कुल, तो बीपीएच पर हम लगातार बात कर रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि ये एक साइन ऑफ एजिंग है, तो डॉक्टर ये उतना ही नेचुरल है जितना बालों का सफेद होना है कि एक सर्टेन एज के बाद तो ये होगा ही, या चेहरे पे रिंकल्स आना है. तो इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे. आपने कुछ सिम्पटम्स बताए, हम चाहेंगे कि और डिटेल में आप बताएं कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं अगर बीपीएच है, क्या सिम्पटम्स हैं जिसको पहचान के डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है. बराबर. सो जैसा मैंने बताया कि इफ यू आर समबडी जिनका एज 40 से 50 के ऊपर है
और आपको बहुत कॉमनली जो फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, वो आते हैं नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया का मतलब कि रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना। फिर दूसरा सिम्टम आता है कि फ्रिक्वेंसी, आप दिन में भी आप बोलेंगे कि आपको बार बार जाना पड़ रहा है। नॉर्मली जैसे एक आदमी दिन में 3-4 बार जाता है पेशाब करने के लिए, जो बीपीएच के पेशेंट्स होंगे वो बोलेंगे हम बार बार जाते हैं। और वो बोलेंगे कि धार भी हमारी बहुत पतली होती है, पैर के पास पड़ती है, रुक रुक के होती है। फिर वो ये बताएंगे कि जब पेशाब लगता है तो रोक नहीं पाते, उनको भाग के जाना पड़ता है। फिर वो ये बताते हैं कि कई बार जाते जाते पेशाब कपड़ों में लीक हो जाता है। फिर वो ये बताते हैं कि हम पेशाब करने गए थे तो वहां पे हमें जोर लगाना पड़ा। और वो जब पेशाब करने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है मरीजों को कि वो तुरंत में पेशाब चालू नहीं कर पाते हैं, कुछ देर खड़े रहते हैं, कुछ देर बाद उनको पेशाब चालू होता है। और उनको जोर लगाने के बाद में ये भी एहसास होता है बहुत बार कि पेशाब पूरा नहीं हुआ है, वो फिर से वापिस जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो कुल मिला के अगर इसको हम लोग मोटा मोटी में समझेंगे तो हम्म। इनको मेडिकल भाषा में दो तरह के सिम्टम बोलते हैं। एक बोलते हैं स्टोरेज लट्स, एक बोलते हैं वॉइडिंग लट्स। स्टोरेज लट्स मतलब लोअर यूरिन ट्रैक्ट सिम्टम, जिसमें उनको पेशाब को स्टोरेज में प्रॉब्लम है, जिसमें 3 चीज आती हैं, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड नॉक्चूरिया। और वॉइडिंग लट्स में अलग 4 सिम्टम आते हैं, जिसमें पुअर स्ट्रीम, इंटरमिटेंसी, स्ट्रेनिंग एंड सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग, जो कि मैंने आपको हिंदी में भी बताया। ये दोनों तरह के सिम्टम्स बीपीएच के सिम्टम्स को कंप्लीट करते हैं, जिसमें स्टोरेज सिम्टम भी हो सकते हैं, वॉइडिंग सिम्टम भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स वी ट्रीट द पेशेंट्स। बिल्कुल, तो सिम्पटम्स के अनुसार ट्रीटमेंट होता है। सिम्पटम्स के बाद ये तय किया जाता है, देखने के बाद, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो। जो आपने सिम्पटम्स बताए हैं डॉक्टर, आमतौर पे एक सर्टेन एज के बाद ये सिम्पटम्स बहुत कॉमन होते हैं। और जब बोला जाता है कि अच्छा बार-बार आप पेशाब करने जा रहे हैं, बार-बार रात में उठ रहे हैं, या कई बार तो पब्लिक प्लेसेस में जाने से बहुत डरने लगते हैं कि कहाँ जाएँगे, वहाँ अगर यूरिनेशन करना हुआ तो कहाँ वॉशरूम्स मिलेंगे, इस तरह की तमाम प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। जब कई बार बोला जाता है उनसे कि डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उनका एक बहुत आसान-सा जवाब होता है कि अरे ये तो होना ही है, ऐज के साथ तो ये होना ही है, या मैं डायबिटिक हूँ तो ये तो होगा ही। तो ऐसे कई बार उसे साइन ऑफ एजिंग मान के, भले ही प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट भी एक साइन ऑफ एजिंग है, लेकिन इन सिम्पटम्स को हम साइन ऑफ एजिंग मान के बैठ जाते हैं, एंड वी कीप ऑन सफरिंग इन साइलेंस। हम कई बार बात नहीं करते हैं घर वालों से भी, दोस्तों से भी, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, एंड वी कीप ऑन सफरिंग इन साइलेंस। तो मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर कि क्यों ज़रूरी है कि हम इन सिम्पटम्स को, अगर हो रहे हैं, जो भी हमारे घर में, परिवार में मेल्स हैं आफ्टर सर्टेन एज, तो क्यों ज़रूरी है कि वो डॉक्टर को दिखाए? अगर इन सिम्पटम्स को इग्नोर किया जाए या मान लिया जाए कि अच्छा ये तो होगा ही। ठीक है, रात को 2-3 बार उठ जाएँगे, दिन में ज़्यादा बार चले जाएँगे, जो इश्यू हो रहा है। तो वो कितना बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये प्रॉब्लम जब तक बहुत एग्रीवेट नहीं हो जाता तब तक पेशेंट आता नहीं है। और अगर हुँ, आप खुद देखेंगे घर में भी, जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं तो वो रात 2-2 3-3 बार उठते हैं और उनको वो नॉर्मल लगता है। तो हुँ, राइटली कि ये साइन ऑफ एजिंग है, और इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उम्र का लिहाज। इसको बीमारी नहीं बोलते हैं। बट हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि जिस तरीके से अगर आपका प्रोस्टेट बड़ा हो रहा है और आपका पेशाब रुक जा रहा है थैली के अंदर में, तो यूरिन इज समथिंग जो बॉडी बाहर निकालना चाह रही है, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी वेस्ट। अगर वो बॉडी के अंदर रहेगा तो वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि जो यूरिन बॉडी में रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत समय तक जब पेशाब की थैली में पेशाब रुकने लगता है तो थैली की दीवार मोटी हो जाती है, जिसको हम लोग ब्लैडर वॉल थिकनेस बोलते हैं। और धीरे धीरे ये इतनी थिक हो जाती है कि ये किडनी पे चेंजेस लाती है। तो आपको ऐसा भी सकता है कि आपकी किडनी में काम करने की जो फंक्शन है वो डिटोरेट हो जाए। और ऐसा भी होता है कि किडनी पे सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ब्लैडर की वॉल थिकनिंग के कारण से ब्लैडर में चेंजेस आते हैं, जिस कारण से ब्लैडर में सिस्टाइटिस हो जाता है। ऐसा भी होता है कि ब्लैडर की दीवार में होती है और उसमें जो नसें होती हैं वो छोटी छोटी नसें की कोशिकाएं फटने लगती है, जिसको हम लोग हेमेटूरिया बोलते हैं। फिर पेशाब में खून भी आता है। पेशाब के रुकने के कारण से पथरी भी बन सकती है, जिस कारण से आप देखेंगे कई सारे पेशेंट्स को ब्लैडर स्टोन हो जाता है, विच इज अ कॉज ऑफ प्रोस्टेट ओनली। जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोस्टेट से बहुत समय से पेशाब रुक रहा है जिनको, तो उनको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है कि यूटीआई हो सकता है। तो ये सब हो सकती है कि सूजन आना, नलियों में अटकाव होना, इन्फेक्शन होना। तो इसके लिए ही और टाइमली ट्रीटमेंट लेने से ये सब चीज से अपन लोग अवॉइड कर सकते हैं।
मैं आपको अगर इजी भाषा में बोलूँ तो जिस तरह से डायबिटीज और हाइपरटेंशन को अपन समझते हैं कि सिर्फ गोलियों से कंट्रोल कर सकते हैं, सेम वे अगर प्रोस्टेट अगर अपन अर्ली स्टेज में ही देख लेते हैं, माइल्ड symptoms हैं, and if we take some medications and some dietary advices and some lifestyle modifications, तो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं until you proceed to a moderate to severe stage of prostate. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर ने बताई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर अर्ली साइन्स ये हैं या अर्ली सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं, तो आप जितनी जल्दी एक डॉक्टर के पास, एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। जितना आप देर करेंगे या सहते जाएँगे चीज़ों को या डॉक्टर से डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करवाएँगे, उतना जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो बेटर है कि साइन्स हैं, अगर ये सिम्पटम्स हैं तो हम तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उनकी सलाह लें। ये अब आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर, जब एक पेशेंट आपके पास आता है ये सिम्पटम्स लेकर, तो किस तरह के टेस्ट आप नॉर्मली रिकमेंड करते हैं जिससे ये तय हो जाए कि ये बीपीएच है? तो इन जनरल देर आर सम बेसिक रूटीन टेस्ट जो कि एक बीपीएच का पेशेंट आए तो भी होना चाहिए, जो कि है सीबीसी। बहुत कॉमनली अपन लोग इन्फेक्शन को भी देखना चाहते हैं, तो अपन लोग सीबीसी की रिपोर्ट में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं कि वो इन्फेक्शन बढ़े हुए हैं। नॉर्मल पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल का स्टेटस का भी आइडिया हो जाता है, एंड व्हाट अबाउट हिज प्लेटलेट काउंट्स एंड लिम्फोसाइट काउंट्स का भी आइडिया हो जाता है। सेकंड स्टेप पे बहुत कॉमनली पेशेंट इज अनडायग्नोस्ड, दोज पेशेंट हु कम्स टू यू एट 50 ईयर ऑफ एज, they sometimes tends to have diabetes, which is also a factor which increase the risk of BPH. So you should have a random blood sugar level, and if something you find abnormal in random blood sugar level, then you can go for confirmative diagnosis of the diabetes, which can be fasting blood sugar and postprandial blood sugar and HbA1c. And third test is urine routine micro. In urine routine micro, we just take simple urine sample, and in which we are looking for फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फंक्शन, वेदर उनमें कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा है, यूरिन में शुगर लीक तो नहीं हो रहा है, देन वेदर देयर इज पस सेल, जो कि यूटीआई की डायग्नोसिस में हेल्प होगा कि पेशेंट को बीपी साथ यूटीआई तो नहीं हो गया है। तो विल लुक फॉर यूरिन रूटीन, इनमें पस सेल्स, आरबीसी, प्रोटीन का लीक और शुगर का कुछ इश्यू तो है कि नहीं। एंड समटाइम वी फॉर कास्ट एंड क्रिस्टल, जो कि अगर स्टोन बन रहा है पेशेंट को तो समटाइम वी लुक फॉर कास्ट एंड क्रिस्टल, and that also is a indicator for infection if we find abnormal cast and crystal in urine routine micro. This is all about urine and blood test. Then second number test comes is sonography. So in this we get a sonography of the abdomen, and we specifically ask the patient to hold the urine for a while and then go for the urine USG abdomen. उसमें क्या होता है कि जब आप पेशाब रोक के सोनोग्राफी करवाते हैं तो ब्लैडर नीड टू बी फुल सो दैट यू कैन इवेलुएट 2 to 3 थिंग्स। एक तो ब्लैडर फुल होने पे यू विल नॉट मिस आउट एनी स्टोन इन द ब्लैडर। सेकंड थिंग, यू विल नॉट मिस आउट द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लैडर। लॉन्ग स्टैंडिंग बीपीएच में ब्लैडर वॉल थिकनेस हो जाती है, एंड दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सिस्टाइटिस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बीपीएच। एंड थर्ड इज प्रोस्टेट साइज इवेल्यूशन बिकम्स मोर एक्यूरेट व्हेन द ब्लैडर इज फुल। अगर आपका ब्लैडर फुल नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द प्रोस्टेट साइज properly. This is about the bladder. And the third test is actually uroflowmetry, very basic non-invasive test in which we ask the patient to hold at least 150 ml of urine, and we ask the patient to void on a machine which is called uroflowmeter. And if he voids at least approx 150 ml, we can evaluate the flow pattern. So जो पेशेंट बोलते हैं कि मेरा धार अच्छा नहीं हो रहा है, पतला आ रहा है, अटक अटक जा रहा है, that get confirmed on uroflowmetry. And basic में there are different type of flow patterns that decides कि patient को क्या तकलीफ है, whether it is a prostate problem, whether जो urethra है पतला जिसको stricture बोलते हैं वो प्रॉब्लम है। एंड मल्टीपल इंफॉर्मेशन यूरोफ्लोमेट्री दे सकता है। जैसे पेशेंट बोलता है हेजिटेंसी, तो मशीन विल शो इट टुक सम टाइम टू स्टार्ट द यूरिन। फिर वो बोलते हैं कि इंटरमिटेंसी, अटक अटक के पेशाब हो रहा है, तो यूरोफ्लोमेट्री विल शो द फ्लो पैटर्न विल बी इंटरप्टेड। when फिर वो बोलेंगे धार कमजोर आती, तो there is something called Qmax. Qmax means maximum flow velocity what patient attained while passing the urine. तो मेडिकल भाषा में शास्त्र में ऐसी बात की जाती है कि जो भी 15 ml per second से ज्यादा यूरिन कर सकते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी नियर नॉर्मल यूरिन फ्लो। अगर वो उससे कम आ रहा है देन वी ग्रेड देम एज हैविंग अ पुअर फ्लो ऑफ यूरिन। सो दिस इज फॉर स्टैंपिंग द पेशेंट, एंड बेस वैल्यू डिसाइड करने के लिए पेशेंट का प्रेजेंटली
condition क्या है, and after we start treatment we can confirm that now patient is getting improved on the medication or not. तो ये जो 3 जांचें मैंने बताई आपको, ब्लड यूरिन टेस्ट फॉर बेसिक वर्कअप एंड फॉर यूटीआई and for finding the kidney function and for labeling UTI, and USG abdomen for finding out the prostate size, and Europrometric for baseline evaluation of the present condition of the patient कि उनका flow कितना poor है and उनका intermittency और various symptoms जो बोलते हैं वो कितने ज्यादा हैं। ये 3 जांच के बाद में there is one more blood test which is very important, which is called PSA, which is called prostate specific antigen. That is to rule out whether the patient is having prostate cancer or whether the patient is having benign prostatic enlargement. So PSA is not cancer specific. PSA is prostate specific. उसके नाम में ही लिखा है prostate specific antigen. There are 3 conditions overall which causes the PSA to rise. It is not only that cancer which will cause the raised PSA. तो नॉर्मल PSA का वैल्यू 0 से 4 नैनोग्राम पर ml होता है। अगर उससे ज्यादा बड़ा हुआ आ रहा है तो वी डोंट हैव टू थिंक इट इज ओनली कैंसर, इट कैन बी कैंसर, इट कैन बी वेरी लार्ज साइज प्रोस्टेट, और इट कैन बी infection of prostate which we call prostatitis. So then we have to work on these 3 lines whether it is what which is causing the raised PSA. So this is how we try to find out the prostate management initially. Fair enough. As you mentioned about prostate cancer, doctor, because even if today we are talking about BPH, we also know that if the prostate enlargement can be benign, it can also be cancerous. Are these symptoms similar, or are these symptoms in case of cancerous enlargement of prostate different? So it can be same, and prostate cancer is very notorious, and you can say it can work both way. Very commonly, prostate cancer can present with hematuria also, but it is not necessary that prostate cancer will present differently. And prostate cancer is something I will tell that it is a boon for us that by just doing PSA, that before the symptoms starts, we can find out the patient is having cancer. So if patient come with symptom of BPH and we do a PSA, and prostate cancer can be in very early stage and we can cure it. That is just like how we can talk about CA breast, cancer breast. There are like BRCA1, BRCA2 antigen. Same way in PSA, you just do a blood test PSA and prostate is in very initial stage, no symptom of cancer, you can still find out. But to answer your question, it is not very commonly that it will present separately. The symptoms are more overlapping with BPH. It is just when we have some suspicion, like when we do digital rectal examination, हम लोग क्या करते हैं, संडास के मार्ग में अपनी उंगली से जांच करते हैं प्रोस्टेट को। अगर वो एबनॉर्मल फील होता है, उसमें कोई नोड्यूल फील हो रहा है, एबनॉर्मली हार्ड प्रोस्टेट ग्लैंड फील हो रहा है, दोज आर साइन ऑफ कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जिसको सीए प्रोस्टेट बोलेंगे। एंड वी कंफर्म इट बाय सोनोग्राफी में द टेक्सचर ऑफ द प्रोस्टेट विल लुक एबनॉर्मल। एंड थर्ड चीज जो पीएसए है वो बढ़ा हुआ आएगा। जब ये कंडीशन आएगी देन वी नीड टू कंफर्म इट, और उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग बायोप्सी लेते हैं प्रोस्टेट की, जो कि इनल रेक्टम से ही अपन ले सकते हैं। बाय स्पेशली डिजाइन्ड मशीन है जिसको ट्रांस रेक्टल बायोप्सी बोलते हैं, वो हम लोग करके उसको कंफर्म करते हैं जब हमारे को सस्पिशन होता है कैंसर का। That makes it even more important to go and consult a qualified urologist if these symptoms are there, just to rule out कि cancerous नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर symptoms हैं तो तुरंत जाएं, क्योंकि prostate cancer एक ऐसा कैंसर है डॉक्टर जो जिसका इलाज हो जाता है इजीली, अगर वो बहुत मतलब सर्वाइवल रेट बहुत हाई है, बहुत इजीली इलाज हो जाता है, और कई बार तो उसे अच्छा कैंसर भी कहते हैं, मतलब कैंसर की जितनी लिस्ट है उसमें भी उस तरह से उसको शामिल किया जाता है। तो इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो उन्हें हम इग्नोर ना करें। बीपीएच पे हम वापस आएंगे डॉक्टर। एक आपने बताया कि सिम्टम्स हैं, आप डॉक्टर के पास गए, जांचें हुई, उसमें अगर पता चला देन दे विल डिसाइड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए सिम्टम नहीं है तो भी क्या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकता है? कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मान लीजिए एनुअल चेकअप के लिए गए, सोनोग्राफी की, उसमें पता चला कि अरे प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने पूछा कि ये सिम्टम्स है, तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, बट सोनोग्राफी में बढ़ा हुआ प्रोस्टेट आया, तो ऐसा भी होता है डॉक्टर? यस। तो पहले बताता हूँ बेसिक में जो प्रोस्टेट का साइज है, द नियर नॉर्मल और नॉर्मल यूसेज लेस देन 20 ग्राम प्रोस्टेट इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल साइज for Indian people.
For Western people, it is somewhere 30 gram prostate. So prostate enlargement, as I told you, वो नॉर्मल फिनोमिना है. जो भी 50 ईयर के एज के बाद होंगे उनमें प्रोस्टेट साइज बढ़ सकता है, बट वी डोंट ट्रीट द रिपोर्ट्स. फर्स्ट डिक्टम है मेडिकल का कि फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट द सिम्टम्स आर देयर एंड ट्रीट द सिम्टम, डोंट ट्रीट द रिपोर्ट्स. अगर पेशेंट्स, एंड देयर इज अदर पार्ट ऑफ दिस इज पेशेंट समटाइम दे डोंट अंडरस्टैंड दे हैव प्रॉब्लम. जैसे मैंने बताया कि नॉक्चुरिया रात को 2 बार 3 बार उठना पड़ रहा है एंड दे आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट. बट इफ यू कंसीडर समबडी हु इज यंगर इन 30 डिकेड 40 एज में, वो रात को एक बार भी नहीं उठ रहे हैं, तो एक्चुअली देयर इज अ सिम्टम बट पेशेंट इज नॉट नोइंग अबाउट द प्रॉब्लम. So first of all, try to find out the symptoms. Try to get very good medical history that patient को symptoms हैं, and also try to see this in uroflowmetry. Patient बोल रहा है मेरा flow बराबर है, मेरे को यूरिन की धार पतली नहीं लग रही है, but when you do a uroflowmetry, the urine flow is very poor. That time you have to tell the patient actually you have symptoms. Now you need to go undergo treatment. So this is the part where patient is unknowingly telling that he don't have symptom. He has come for medical checkup and we find that he has prostate and he also has symptoms, treat it. Second part, when patient actually is not having symptom and हमने reports कराई, वो reports में भी uroflow is not bad, he is making the Qmax of more than 15, and इसके अलावा patient को प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, कंसीडर गिव एग्जांपल कि 30 ग्राम का प्रोस्टेट आया, इन दोस कंडीशन वी डोंट ट्रीट इट. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोस्टेट का मैनेजमेंट 4 स्टेप पे होता है. तो ये वॉचफुल वेटिंग बोला जाएगा इसको. इसमें हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हम पेशेंट को कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे और हम पेशेंट्स को बताएंगे किस तरीके से ही शुड डू अ गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, प्रॉपर वाटर इनटेक एंड सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. जिसमें मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि वो वॉचफुल वेटिंग में क्या होगा कि अपन पेशेंट को ऐसा बताएंगे कि ही शुड ड्रिंक not too much amount of water, but he should drink an adequate amount of water, which will be somewhere around 2.5 to 3 liter of the water. And night time he should avoid taking water some 2 to 3 hours before the sleep. तो उसमें ये होता है कि आप रात को 2 घंटे 3 घंटे पहले पानी बंद कर देंगे सोने से पहले, तो यू डोंट नीड टू गेट अप एक्स्ट्रा इन द नाइट, अदरवाइज रात की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. विल टेल द पेशेंट्स की इवनिंग आवर से दे शुड स्टॉप टेकिंग डायरेटिक्स जो ज्यादा पेशाब बनाते हैं, जैसे कि आप समझेंगे कोल्ड ड्रिंक्स है, टी कॉफी बेवरेजेस हैं, एसिड्स हैं, सोडा है, ये सब उनको अवॉइड करना चाहिए. वार्म मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सब अवॉइड करना चाहिए जिससे पेशाब ज्यादा बनता है, तो उनको बार बार जाने की फ्रीक्वेंसी कम होगी. देन दे शुड हैव अ गुड एक्सरसाइज, दे शुड ऑल्सो हैव गुड डाइट. They should not take diet which is rich in too much of animal protein. Too much high salt intake also is bad because salt ज़्यादा intake रहेगा तो that will also drive more water out of your body and will increase the water output. तो prostate एक पूरा प्रॉब्लम पेशाब से लेना देना है. जो पेशाब ज़्यादा बनेगा तो symptoms भी बढ़ेंगे लगेंगे. He should go on lifestyle in which adequate amount of water intake with adequate urine output will be the goal. And इसके साथ में good balanced diet and good exercise. This will be the mantra for those patients, those who get diagnosed incidentally on screening, not having much symptoms, and can be managed without even medication, just with lifestyle modification and some changes in the exercise food. राइट, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे तो आपने बहुत अच्छे से डॉक्टर बात की. अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर भी बात करना चाहेंगे. क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? Okay, so as I told, there are 4 treatment options. First, we already discussed like lifestyle wakeful watching. So in wakeful watching, we are not treating the patient. We are just trying, not with the medication, but we are trying to help him out with lifestyle modification and some exercises. Second comes the medical management. So एक पहले बेसिक में बोलता हूँ कि किसी पेशेंट को प्रोस्टेट जब डायग्नोस होता है बीपीएच, we try to grade him based on something called IPSS, International Prostate Symptom Score. There is some questionnaire. And based on that we grade the patient in having mild symptom, moderate symptom and severe symptom. तो जो भी पेशेंट को मॉडरेट सिम्टम तक जा रहे हैं, जिनको प्रोस्टेट के सिम्टम्स थोड़े ज्यादा हैं, बेसिक सिम्टम्स नहीं है, उन पेशेंट्स को अपन लोग मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑलवेज मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट देते हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं अल्फा ब्लॉकर के नाम से. अल्फा ब्लॉकर ऐसी दवाइयां होती हैं जो प्रोस्टेट और ब्लैडर का जो जंक्शन है उसके एरिया को खोलते हैं
और प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल्स पे भी काम करते हैं, जिससे रास्ता चौड़ा हो जाता है। प्रोस्टेट के बड़े होने के बावजूद वो दवाइयां वहां पे काम करती हैं और रास्ता खुल जाता है। तो जैसे कि उनका अपन नाम लेंगे तो टमसिलोसिन है, अल्फुजोसिन है, सिलोडोसिन है, ये सब अल्फा ब्लॉकर बोलते हैं। दिस आर द फर्स्ट मेडिकेशन वी गिव द पेशेंट जिनको मॉडरेट सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। एंड इसमें देर इज एन ऑप्शन ऑफ एडिंग वन मोर ड्रग, जिसको हम लोग 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर बोलते हैं, जो प्रोस्टेट की साइज को श्रिंक करने में हेल्प करती हैं। जिसे इनका नाम है फिनास्ट्राइड और ड्यूटास्टेराइड, जिसको 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर बोलते हैं। ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, ये उनको ही दिया जाता है जिनका पीए से बड़ा हुआ हो, या फिर जिनका प्रोस्टेट का साइज 30 ग्राम से बड़ा हो। अदरवाइज वी डोंट ऐड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्टेराइड। हम सिर्फ अल्फा ब्लॉकर देते हैं अगर पेशेंट का साइज 30 ग्राम छोटा है या फिर पीए से भी नॉर्मल है। जिनका बड़ा ग्लैंड होगा उनको साथ में 5 अल्फा रिडक्टेज भी इनहिबिटर भी जोड़ देते हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन मेडिकेशन जो एक ही कैप्सूल में या एक ही टैबलेट में आता है, जो आप दोनों दे सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द मेडिकल। देन थर्ड कम्स इज मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और प्रोसीजर्स फॉर प्रोस्टेट। तो जो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स आते हैं, ये इन जनरली बहुत कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। ये उनको किया जाता है जो पेशेंट्स सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, और जिनका जैसे मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है बट दे आर नॉट फिट फॉर गोइंग फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट, उनको मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स आते हैं, जिसको प्रोस्टा लिफ्ट बोलते हैं। एक तरीके का, मतलब आप समझिए कि पेशाब के रास्ते से ही ट्रांसयूरेथ्रल रूट से अपन लोग जाते हैं और अपन लोग क्लिप्स लगा देते हैं प्रोस्टेट पे, विच एक्चुअली ट्राइज टू श्रिंक इट मैकेनिकली, नॉट बाय एनी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स हो गए। बहुत तरीके के पहले स्टेंट भी ट्राई किए गए हैं, बट दे आर लेस प्रीफर्ड रूट ऑफ मैनेजमेंट। Then the last comes is surgical management, which is actually, you say, the last thing we can do for prostate, and it is always considered when the medical management has failed. Surgical management पे अपन लोग jump करके नहीं जाते हैं. So there are some indications which I will tell you when we have to undergo for a surgery for prostate. So the surgical route is done when medical management has failed. Secondly, patient is telling that I'm having long-term symptoms and I'm not affording for the thing. So that time also you have to consider that it's better to go for surgery than taking lifelong medication, which is not affording. It comes cheaper in that way. Also, those who are having recurrent UTI, जिनको बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, वो ऐसे पेशेंट्स जिनको मैंने बताया था किडनी में चेंजेस आना चालू हो गया, प्रोस्टेट की मेडिकेशन लेती हो तो भी, बट अगर अपर ट्रैक चेंजेस आ रहे हैं, किडनी में सूजन आ जा रहा है, पेशाब इतना रुक रहा है कि पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ जा रहा है, ब्लैडर में स्टोन्स बन जा रहे हैं, वॉल थिकेंड हो गई है, पेशाब करने के बाद भी बहुत हाई रेसिड्यू पेशाब का ब्लैडर में रह जा रहा है, दोज पेशेंट्स हैव टू अंडरगो सर्जरी फॉर द प्रोस्टेट। तो द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनी प्रोस्टेटिक सर्जरी इज कॉल्ड PURP, इट इज कॉल्ड ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें हम लोग पेशाब के रास्ते से ही, एक स्पेशल तरीके की दूरबीन होती है जिसको रिसेक्टोस्कोप बोलते हैं, और पेशाब के रास्ते से ही हम लोग जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसकी छोटी छोटी ग्रंथियां काट के रास्ता बना देते हैं कि पेशाब आराम से हो सके। सो दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। देन आज इफ यू टॉक अबाउट द रिसेंट एडवांसेस, उसमें होलैप और थुलैप भी आ गया है, जिसमें लेजर के द्वारा भी अपन लोग प्रोस्टेट काट सकते हैं। होल्मियम लेजर इन न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट इज होलैप, थुलियम लेजर इन न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट इज थुलैप। और अगर आप ये उससे बड़े ग्लैंड है, somebody who's having 150 200 ग्राम glands, they can also be easily managed with HoLEP and TOLEP। and even अगर पेशेंट को कोई हार्ट इश्यूज है, ब्लड थिनर चलते हैं, खून पतक नहीं चलती, तो भी you can go ahead with laser। मतलब advancement in medical science is so much that patient can be benefited with even minimal of the procedure, and they are in good hands, so they won't mind even getting discharged in 2 days। तो ये जो एडवांसमेंट है, that can be helpful for the patient if those who want to undergo surgery even with so many risk factors। and अगर बहुत बड़ा prostate है, even can be done by robotic prostatectomy, which can be through the transabdominal route or through the extraperitoneal route। So a lot of treatment options are there, and a lot of advancement has also come. And there are so many questions by our viewers, but we have discussed most of them. There is one question that I'll take by Yash Namdev. His question is, sir, is there any side effects of BPH medications? Yes, there are side effects of BPH medication. So nothing comes for free. So, but we always look for the bigger picture. We are taking medication for treatment. So the side effect of alpha blocker, which I told about, silodosin, tamsulosin, they causes, which is very important to tell the patient when we start medication, is postural hypotension.
So you can understand that when we are giving medication, we're trying to open the urethra so that the urine flow will be good. Same way, when we give this medication, they also try to dilate the vessels. So morning hours में जब patients उठते हैं, because of there is a vasodilation, तो उनके लोअर लिम्ब में ब्लड पुलिंग ज्यादा हो जाती है, सो द ब्लड फ्लो गोइंग टू योर ब्रेन इज लेस. तो ऐसे पेशेंट जब सुबह उठते हैं उनको गिडीनेस आती है, चक्कर आता है, उसको मेडिकल भाषा में पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं. सो वी टेल दोस पेशेंट्स जिनको भी अपन अल्फा ब्लॉकर देते हैं कि बी केयरफुल इन द मॉर्निंग आवर व्हेन you get up slowly, don't move in hurry, take ample amount of time like 15-20 seconds to get up from lying down position to sitting position. फिर sitting position से slowly take some steps, then in that way you will be okay and you will not face too much of postural hypotension. This is one. There is other side effect which is called retrograde ejaculation. जिस तरीके से वो रास्ते को ओपन करता है यूरेथ्रा के रास्ते को, same way what happens when patient is having sexual activity, they will have normal climax but there won't be any ejaculation. तो उस समय क्या होता है कि जो सीमेन आने वाला है, that will not come out of urethra but it will go in the bladder because bladder neck open है because of the alpha blocker. So those patients can tell ki sir, while having sexual activity there was some problem that I was not able to ejaculate well or there was some problem. So he's trying to indicate about the retrograde ejaculation. So that is also a very common side effect of the alpha blocker, which we need to tell the patient if he has to father a child, that time he need to stop those medication for some 2 to 3 days. In that time he will have normal ejaculation. Otherwise, when he will be passing urine, in that the semen will come out. That will not cause any harm, but we need to counsel the patient. Then other less common side effect is some dizziness is there, some have nasal stubbiness is there. So there are different alpha blockers जिनका side effects profile के हिसाब से अपन को देना पड़ता है. So that will be a separate topic if I'll discuss with what alpha blocker at what age and what to do. Yes, doctor. So I was saying before we sum up the whole session, any take home message, anything we have missed out on, anything that you would like to say to our viewers? So, most important thing I like to tell is if anybody in your home, whether you or your parents, if you are facing any problem in urinary flow or symptoms, you should not wait and try to take some home remedy. You should always consult your urologist and get a baseline evaluation done. There is nothing wrong and there's nothing to worry to just meet a urologist and have a baseline evaluation. In that way, what happens is you start understanding your problem and get a baseline workup so that you will know what to expect and when to meet a neurologist. And considering alpha blocker, means you don't need to have a recurrent follow-up also with the urologist. Once you go and meet and you understand what is the problem, it can be taken care of easily. But second step, when the patient is having symptoms, always try to consult a neurologist and try to understand what all treatment options you have, and that can be taken care with minimal of investigations and minimal of treatment. So that is the first thing which you should not avoid. I will try to give an example. I have gone to camp at multiple places, and patient comes for other thing. When I ask them, कोई भी पेशाब में तकलीफ है, they tell me 3-4 complaints. So until I ask, they'll not tell me. But if you know, so you should enlighten them that you should go and consult a neurologist. That would be the difference. Right. कई बार ये जो प्रॉब्लम्स है इसे हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हमें उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता. हमें लगता है ये तो है ही, इसी के साथ रहना है, तो इसलिए हमें पता नहीं होता. जब डॉक्टर पूछते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, रात में उठना प्रॉब्लम है. तब दैट्स व्हेन वी ओपन अप. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के सेशंस करें और लगातार हमें पता चलता रहे, हम इन्फॉर्म्ड रहें, और कोई दिक्कत हो तो हम सही एक्सपर्ट के पास जाएँ, व्हिच इज़ अ क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट इन दिस केस. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अंकुश पुरी. इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस. थैंक you once again. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates, stay connected on our FB page, Prostate Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, Instagram. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye.